Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bathing is not there. Snap because charge is down. No charge. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. सब बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Goprananda, Vrindavan Hari Ram Sankirtan ki. Hare Krishna. यहाँ चुप रहने से भी कितना अच्छा लगता है। ये धाम की महिमा है। केवल नैसर्गिक सुंदरता को भी अगर हम देखेंगे यहाँ तो समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा हम पर कितनी है। ये भगवान का निर्माण है, नैसर्गिक सृष्टि भगवान की सृष्टि है। हमने नारकीय बना दिया इसको अपने बुद्धि लगा के, बड़े बड़े शहर निर्माण कर दिए और समय नहीं हमको जो जिसलिए मनुष्य जीवन है। सचमुच में देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा खाना, अच्छा सुंदर नदी में स्नान, फिर गांव में रहना, गौ सेवा करना, थोड़ा जीवन निर्वाह करना और बाकी समय हरिनाम करना। एक्चुअली वैदिक जीवन ऐसा था। 4 महीना लोग काम करते थे, 8 महीना ऐसा भ्रमण करना अलग अलग जगह। यहाँ भी आप देखेंगे वारकरी के लोग, दिंडी यहाँ से जाती है आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर। कई दिनों तक एक छोटा सा पोहा का एक और कुरमुरा रख लेते हैं थोड़ा, और पूरे के पूरे गांव निकल जाती है, बूढ़े लोग, बच्चे लोग सब, और हर रोज चलते हो चल के जाते हैं यहाँ से पंढरपुर। कहीं भी सोया ऐसे ही बस नदी के बगल में कहीं डाल दिया है छोटा सा, अपना कपड़ा डाल के सो गए और सुबह उठे, स्नान वान किया, निकल पड़े, कीर्तन करते, पूरा दिन कीर्तन करते करते जाते हो। एक्चुअली ये संस्कृति थी भारत की। दुर्भाग्यवश अभी साल में 1-2 बार समय मिला तो हम लोग ऐसा जीवन जीने का प्रयास करते। बिगड़ गए हम लोग, शहर में रह रह के इतने बिगड़े हुए हैं। वो वेस्टर्न कमोड चाहिए, नहीं तो होता ही नहीं काम हमारा। नींद नहीं है ठीक से, कहीं भी और दूसरे जगह सो गया तो फिर नींद ही नहीं ठीक से।
पर अगर दिन भर अगर थके हुए तो आदमी कहाँ भी सो जाए, ऐसे पत्थर के ऊपर लेट जाए तो खर्राटा मारता है। देखोगे बम्बई में कहाँ कहाँ लोग आराम से सोते रहते, और बिगड़े हुए लोगों को कुशन के ऊपर भी नींद नहीं आता, करवटें बदलना पड़ता है। सरल जीवन था तपस्या। एक्चुअली ऋषभ देव कहते तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तपस्या मतलब क्या? स्वेच्छा से थोड़ा कठिनाई उठाना, स्वीकार करना स्वेच्छा से। भविष्य में लाभ के लिए अभी थोड़ा बहुत कठिनाइयों को स्वेच्छा से स्वीकार करना। जैसा माँ बाप लोग बच्चों को कहते हैं, अभी देखो परीक्षा आ गया, अभी चलो टीवी सब बंद, पढ़ाई करो, क्योंकि परीक्षा पास आ गया। पास होना है कि नहीं तेरे को? बाद में रोएगा, देख सब लोग दूसरे क्लास में चला जाएंगे, वही क्लास में फिर से बैठा रहेगा, तो सब हंसेंगे तेरे ऊपर। इसी तरह से आचार्य हमारे लाठी लेके बोलते, मूर्खों, जीवन एक तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है। ये जीवन, ये जो स्कूल है, ये पाठशाला है, भगवान की निर्माण किया हुआ पाठशाला। और जीवन जो है ये पढ़ाई है। 1 साल पढ़ता है, 2 घंटे में उसकी परीक्षा होती है कि पढ़ाई किया कि नहीं, पाठ को सीखा कि नहीं। देखिए कंफर्मेशन तो मृत्यु परीक्षा है। अब मृत्यु के समय परीक्षा होगी कि तुमने जीवन के सारे शिक्षा सीखे कि नहीं, और कौन यशस्वी है, कौन उत्तीर्ण होता है परीक्षा में। भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हे अर्जुन, शरीर छोड़ते वक्त जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, अंत काले च माम एव स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति, ये प्रयाण है। ये लंबी यात्रा शुरू करते हैं हम लोग, हमारी यात्रा, असली यात्रा शुरू होती है उसके बाद, मृत्यु के बाद। तो यह प्रयाति स मद भावम याति, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। न अस्ति अत्र संशय, इसमें संशय मत करो तुम। तो स्मरण होना, और हम जीवन में जितनी भी सारी पूजा पाठ करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जो भी वर्णाश्रम धर्म में कर्तव्य निभाते, एक करो, सुबह उठना, जप तप करना, थोड़ा पवित्र स्थानों में जाना, बहुत सारे जाते हैं, पर मुख्य उसका सार क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध्या स्युः एतयोरेव किंकरा। पद्म पुराण कहता है एक ही उद्देश्य है सारे नियमों का। इतने सारे पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, ये सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले 2 ही चीज, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करो, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भूलो मत भगवान को, सर्वे विधि निषेध। देखो शास्त्र में 2 प्रकार के वाक्य हैं, विधि और निषेध। विधि मतलब करो, ये चीज करो, डूज एंड डोंट्स। जैसा आप एक कोई भी मशीन खरीदते हो तो मैन्युफैक्चरर जो है मशीन के साथ एक मैनुअल देता है, डूज एंड डोंट्स। इसको गर्म धूप में मत रखो, इसको बच्चों के हाथ से दूर रखो, इसको ठंडे जगह में रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह से ये जो शरीर है एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानी माया। भगवान ने एक शरीर दिया है और सृष्टि में हमको स्थान दे दिया है। तो इस सृष्टि का उपयोग किस लिए करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, इस मनुष्य शरीर का उपयोग किस लिए करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, ये एक यंत्र है। और इस संसार में हम आए हैं, ये भी एक बड़ा साधन है। तो इस साधन को उपयोग
कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और यही शास्त्र है। और सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान को स्मरण करो, कभी भगवान को भूलो मत। तो जीवन तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है। अब परीक्षा में आप बोलो, आप सोचो, अगर एक बच्चा साल भर पुस्तक खोलता भी नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात, पुस्तक खोलता ही नहीं है, अब परीक्षा के दिन उसको बोला जाए ओपन बुक एग्जाम, तू खोल के उतार भी सकता, उसको उतारने कहां से उतारना है वो भी नहीं मालूम रहेगा। कभी कभी मैं गीता कोर्स में जब ये बोलता हूं, कोई लोग प्रश्न पूछता है, प्रभु जी आप सच्ची बोल रहे हो, मरते वक्त अगर कोई हरे कृष्णा बोल दिया तो भगवधाम जाएगा? 100%। तो फिर मौज मस्ती करो, मरते वक्त हरे बोल हरि बोल। अच्छा हो गया ना, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, गीता कोर्स मतलब पूरा पैसा वसूल हो गया, अभी समझ में आ गया। खूब खाओ पियो, मौज मस्ती करो, मरते वक्त सिर्फ हरे कृष्णा बोलना। कभी नहीं होगा, निस्संदेह कभी नहीं होगा ये। हमारे एक डॉक्टर थे, उनको जब ये पता चला तो वो बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने सोचा अरे वाह ऐसी बात है, ठीक है, मैं आज से हमारे हॉस्पिटल में जो भी मरेगा, मरना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल आते हैं सुधर के वापस जाने के, पर जो भी मरेगा ना, मैं उसके कान में हरे कृष्णा बोल के उसको बुलवाऊंगा, ताकि फटाफट, मेरे को तो अभी सीक्रेट मिल गया, फॉर्मूला मिल गया मेरे को भगवत धाम भेजने का सबको। तो राह देख रहे थे, कौन मरेगा कौन मरेगा। डॉक्टर है वो राह देख रहे, अच्छे उद्देश्य से चिंता करने का प्रयास करेंगे, एकदम यशस्वी नहीं हुए तो कम से कम भगवत धाम भेजेंगे। तो कई समय तक कोई मरा ही नहीं। बाद में एक औरत आई और उसका बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको 100% गारंटी हो गया कि वे शरीर छोड़ने वाली। सिंधी औरत थी। आप लोग में से कोई सिंधी है यहाँ? हाँ, बुरा मत मानिए, केवल सिंधी लोग हैं, सब लोग मरते हैं। तो बूढ़ी थी, उसको गारंटी हो गया कि अभी शरीर छोड़ने वाली हो। तो इनको बहुत उत्साह आ गया, बोला वाह इसको ही भगवत धाम, इसके मुंह से हरिनाम बुलवाना है। तो गए और उसके कान में बोले, माता जी भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। छा 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 मतलब क्या क्या? तो बोले माता जी भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। छा उनको लगा शायद प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर हुए। प्राण प्रयाण समय बोले भगवान अभी मैं तंदुरुस्त हूं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। जिस प्रकार एक हंस हमेशा कमल में अपना सर डाल के रखता है, इस तरह से आज मेरा मन आपके चरण कमलों में हमेशा रमण करता रहे। अभी मैं स्वास्थ्य हूं, शरीर अच्छा है, हाथ पैर काम कर रहा है, मन ठीक ठाक है, इधर उधर भ्रमित नहीं हो गया है। अब मैं शरीर छोड़ दूं। क्यों? प्राण प्रयाण समय, प्राण जाते वक्त कफवात और पित्त अटक जाता है गले में आके, बस यही आवाज आता है, नाम भी नहीं निकलता भगवान का नाम। तो मुकुंदमाला स्तोत्र में वो कहते हैं कि प्रभु अब मैं तंदुरुस्त हूं, अभी मैं शरीर छोड़ दूं, ताकि अच्छे तरह से आपका स्मरण करते करते शरीर छूट जाए। इतना तो कर ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कि जिह्वा पे आपका नाम हो। तो उन्होंने सोचा बेचारी कान कफवात पित्त, इधर से एक कान ठीक से सुनाई नहीं देता होगा, तो उधर गए, वो दूसरे कान में होता है, उसे किसी को एक कान सुनाई नहीं देता, हाँ छा छा, तो बोले ये कान से बोलूंगा, माता जी भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। छा इनको हल्का सा बोलेंगे नहीं चलेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, शायद ठीक से कान सुनाई नहीं देता है, पर जोर से चिल्लाएंगे तो
सिस्टर लोग और पेशेंट लोग बोलेंगे क्या हो गया, डॉक्टर क्या मार रहा है क्या जान से इसको। तो उन्होंने क्या किया, ऑफकोर्स डीलक्स वार्ड था, तो सिस्टर को बोले बाहर जाओ, सब बाहर जाओ, सबको बाहर भगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोले माता जी भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा बोलो। अच्छा आज बोले एक बार मैं पूरा प्रयास करता हूँ, पूरा जान डाल देता हूँ, प्रयास करूंगा, शायद बोल दे। और एक बार जब बोले माता जी भगवान का नाम लो, इससे ज्यादा बोलूंगा तो सब लोग भाग के आ जाएंगे। हरे कृष्णा बोलो। बोले क्यों चिल्लाता है? अरे मेरी बेटी सिंगापुर में है, उसका नंबर ले, तुरंत उसको बुला, बोल मैं शरीर छोड़ रही हूँ। फर्स्ट क्लास काम सुनता था, दिमाग पूरा काम कर रहा है। सिंगापुर में उसकी लड़की है, मोबाइल नंबर याद है, दे दी, और बोले तुरंत उसको बुला के बोलो मैं शरीर छोड़ रही हूँ। तो डॉक्टर बता रहे थे उस दिन मैं समझ गया, जिसने जीवन भर तैयारी नहीं की स्मरण करने की, मृत्यु के समय कोई कान में बोलेगा भी ना, नहीं निकलेगा, क्योंकि आदत नहीं है, जिंदगी भर पुस्तक खोला नहीं है, परीक्षा के समय है, कॉपी करने के लिए भी कहाँ से उतारना नहीं समझेगा उस व्यक्ति। कोई पुस्तक दे भी दे, सौभाग्य उसको जाके बोले चल, सबको मैं भगा दिया हूँ, सुपरवाइजर को भेजा हूँ, चल कॉपी कर जल्दी, कहाँ से उतारना है? मूर्ख, मुझे क्या मालूम, तू पढ़ाई करने वाला, तू पढ़ा, तू उतार। नहीं, पढ़ाई नहीं हूं मैं। तो इसीलिए जो संत महात्मा लोग हैं याद दिलाते हैं आके हमको, ये संतों का योगदान है इस संसार में, आके वो याद दिलाते हैं, अरे मूर्खों समय बर्बाद मत करो। हाँ, बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना टाइम पास मत करो, अभी एग्जाम आ गया, हाँ, क्यों इधर उधर भागते हो, खेल कूद छोड़ो, अभी तो बंद, अभी तो तैयारी करो। तो इस तरह से मनुष्य योनि ऐसी चली जाएगी, देखते 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 देखते। एक दिन ऐसे बैठा हुआ ट्रेन में जा रहा था, हट्टा कट्टा एक लड़का नौजवान, अंकल थोड़ा साइड में हो जाओ, अंकल। नौजवान लड़का मेरे जैसे लड़का था, देखने में तो ऐसी मेरे कभी व्यक्ति को समझता नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया। दूसरा व्यक्ति को बोलता ना अंकल, तब समझ में आता अंकल, मैं लोगों को अंकल बोलता था। और थोड़े दिन पहले पूना से आ रहा था, तो एक माँ छोटे बच्चे को लेके बैठी हुई थी, 4-5 साल की लड़की। तो मैं चपाती खा रहा था ऐसा, तो वो बच्चा ऐसा ही देख रहा था, वो भी ऐसा हिला। तो माता जी ने वो बच्चे को बोला, बग आजूबा कैसा खाते? दादाजी कैसे खा रहे थे? मेरे अहंकार को इतना चोट लगा, मैं पीछे मुड़ के देखा कोई बुड्ढा खा रहा है क्या? नहीं, मुझे संबोधित कर रही है, आजूबा कैसे खाते, बग कैसे खाते? उस दिन मैं आईने के सामने गया और पुराने जमाने कॉलेज के दिन याद आए, कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। देखा, अरे हाँ सही बात है। और तब बाद में थोड़े दिन पहले घर गया था मैं, तो मेरी बड़ी बहन की जो लड़की है वो बच्चे को लेके आई थी, ए देखो छोटे दादाजी आए, छोटे दादाजी। तो सच बात है यार, अभी तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। सत्य स्वीकार करना, हो गया मैं दादाजी हो गया। तो ये अहंकार जो है, दो कारण है क्यों ये अच्छा नहीं लगता हमको। बाहरी रूप से अहंकार को अच्छा नहीं लगता, पर अंदरूनी रूप से सत्य ये है कि आत्मा कभी नौजवान है हमेशा। वो आत्मा बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर स्थित रहता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नौजवान है, एकदम फ्रेश, एवर फ्रेश, यूथफुल। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, जैसे भगवान, इसी तरह से हमारा शरीर बूढ़ा होता है, पर आत्मा जो है हमेशा नौजवान है। और इसीलिए मृत्यु जो है हमारे लिए एक
इट्स ए फॉरेन थिंग। मृत्यु हमारे लिए एक ये हमारा स्वभाव नहीं है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने। पर जब हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं और शरीर के सारे उपाधियों में फंस जाते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं अमेरिकन हूं। बहुत सारी उपाधियां, और उपाधियों से बहुत सारे कर्तव्य, और उस कर्तव्य में इतने बंध जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य जो है सनातन धर्म, दो प्रकार के धर्म है, एक शारीरिक धर्म और फिर एक आत्मा का धर्म। अब देखिए, ठंडे दिमाग से आप सोचो, दो प्रकार के धर्म है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। भगवान कहते हैं गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और बाद में अंत में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को फेंको, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा क्यों बोले? धर्म की स्थापना करने आते हैं, बोलते बोलते सब धर्म को फेंको कचरे में। इसका मतलब ये है कि दूसरे जितने धर्म हैं, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, जाति धर्म, गुण धर्म, देश धर्म, शिक्षक धर्म, छात्र धर्म, ये सब धर्म का मुख्य उद्देश्य है सर्वधर्मान माम एकम शरणम व्रज, भगवान की शरण जाना। और शरण जाने का सबसे सरल तरीका कलयुग में हरिनाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसीलिए सारे संतों ने कहा, बोले उठते बैठते भगवान का नाम लो। कन्नड़ के एक बहुत बड़े संत ऐसे, जहां जैसे तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के महान संत हुए, संतों में वो उनको एक गिना जाता है, इसी तरह से कन्नड़ में, कर्नाटक में कनकदास और पुरंदरदास नाम के महान संत हुए। उडुपी में आज कभी हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है वहां। वो कहते हैं कृष्णायन बारदे मलगेद्दु मैमूर्त एळुद्देले वन कृष्णायन। अरे छींकते हो तो हरे कृष्णा बोलो ना, छींकते वक्त हरे कृष्णा बोलो। सुबह उठने के बाद हरे कृष्णा करते हैं ना, थोड़ा उठने के बाद कुत्ते लोग भी करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने आप, प्राणायाम करते वो भी, योगासन, जो हम भी आलस से नहीं करते। उसमें कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। पैर के ऊपर कुछ गिर गया, हरे कृष्णा। कृष्ण का नाम लेते रहो। तो ये तरीका है, हमें याद दिलाने के लिए आते। पर दुर्भाग्यवश पूरे विश्व में जितने सारे महान संत हुए, आचार्य, उनके जीवन में आप देखिए बहुत ही कम लोगों ने उनको स्वीकार किया उनके जीवन के दौरान। उनके जाने के बाद उनकी महिमा समझ में आती है। जैसे एकदम पहाड़ के ऊपर ही खड़े रहो ना, तो पहाड़ कितना विशाल है, कितना महान है, समझता नहीं। हिमालय के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, समझता नहीं। जितना दूर जाओगे उतना, अरे बाप रे, बहुत विशाल है। इसी तरह से जब महान संत जन्म लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, ऐसा लोग नहीं समझ पाते उनकी महिमा। फिर धीरे 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 समझ में आता है। पर संतों की महिमा ये है कि दुर्भाग्यवश स काले ने हम महता योगो नष्ट परंतु, काल के प्रभाव से योग नष्ट हो जाता है। उस नष्ट हुए धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए, याद दिलाने के लिए बार बार संत लोग आते हैं। भगवान भेजते हैं ऐसे संतों को, याद दिलाओ, मेरे बच्चों को जाके याद दिलाओ कि वापस वो मेरे पास आए। और आप देखेंगे कोई भी संतों के जीवन में वो हमें याद दिलाते हैं क्या करना है। और कभी कभी धर्म के नाम पर ही अधर्म हो जाता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। तथा कथित धार्मिक लोग धर्म के नाम पर ही अधर्म करने लगते हैं। तो इसीलिए लोगों को धर्म के ऊपर श्रद्धा भी चली जाती है, या कुछ लोग नादान लोग जो हैं वो उसी पे पालन करते हुए चले रहते हैं। पर जो संत आते हैं, याद दिलाते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना फूलों से भरा नहीं है, हालांकि सरल है, पर इस भौतिक संसार में कांटों से भरा हुआ है।
इतना आसान नहीं होने वाला, समस्याएं आएंगी। कभी कभी लोगों को लगता है सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, ऐसा नहीं है। पर ये हमें याद दिलाते हैं, हाँ कांटे आएंगे। अगर जैसा अब एक जंगल से निकलना है तो सबसे पहले जो जाता है ना उसको कांटे हटाने पड़ेंगे। सब कोई डरता है जंगल में जाने के लिए, पर जो पहला आदमी थोड़ा क्या बोलते हैं डेयरिंग करके जाता है उसको सबसे ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। कांटे निकालने पड़ते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, खून निकलने लगता है, उसके नीचे बहुत सारे जंगली जानवर आक्रमण कर सकते हैं, सांप होते, बिच्छू हो सकते इसके नीचे, झाड़ के नीचे। वो सबको वो सहन करते हैं और सहन करके हमको दिखाते हैं कि देखो ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, उसको मैं सुगम बनाया हूं, आ जाओ मेरे पीछे, सिर्फ मेरे पीछे चलो। महाजनों ये नगता सपन था। उनके चरण चिन्हों पे अगर हम चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो फिर वो रास्ता सुगम हो जाएगा। पर उनके जीवन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा इतना आसान नहीं है। भक्ति करते वक्त बहुत सारी बाधाएं आएंगी, पर उसे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये चीज मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुस्तक में आचार्यों के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी चीज बताई। बोले आचार्यों में और एक मामूली व्यक्ति में क्या अंतर है? बोले 3 चीज। इसको मैं बोलता हूं ट्रिपल सी फॉर्मूला। प्रभुपाद कहते हैं प्रथम स्कंद के भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 4वां श्लोक के तात्पर्य में कि आचार्यों में और एक मामूली व्यक्ति पे अंतर क्या है। बोले 3 चीज। एक, जेन्युइन कंसर्न फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी एट लार्ज। कहीं भी हो वो, पर पूरे विश्व के उद्धार के बारे में सोचते हो लोग। बैठे एक जगह हैं और सोच रहे हैं, जब भी वो दूसरों को देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा भर आता है कि लोग तड़प रहे हैं, भगवान को भूल के तड़प रहे हैं लोग, इनका उद्धार कैसे हो। इस दुनिया में साधारण व्यक्ति केवल अपना सोचता है, केवल अपना सोचता है बस। ज्यादा से ज्यादा बहुत ही बड़ा विशाल स्वभाव का हो तो कम से कम देश के बारे में सोचता है। उससे भी थोड़ा संकुचित चेतना वाला सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचता है, मैं जिस समाज से हूं उस समाज के बारे में। उससे भी संकुचित मन वाला सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, और उससे भी संकुचित वाला सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और अपने को करने के लिए कुछ भी दूसरों को तकलीफ देने के लिए तैयार। पर संतों में और साधारण व्यक्ति में ये है, तो बैठे एक जगह है वो, पर सोच रहे हैं पूरे वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा पूर्ण रूप से विश्व जो है, इस विश्व का उद्धार, हर एक जीव का कैसे उद्धार हो, केवल मनुष्य का नहीं, हर एक प्राणियों का कैसे उद्धार हो। तो ये पहला लक्षण। फिर दूसरा, हो सकते हैं शायद काफी लोग हैं संसार में जो सोचते हैं, अरे बाप रे, जब देखते हैं कभी कोई झुपड़पट्टी से निकलो और देखो कि बेचारे लोग ऐसा तड़प रहे हैं। कोई अफ्रीका का कभी कोई फोटो भेजता है मेरे को, हाँ कैसे भूखे मर रहे हैं वहां के लोग, या बोस्निया में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारे जा रहे हैं इस तरह से बुरी तरह से। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों के प्रति अत्याचार, बच्चों को गर्भ में मार दिया जा रहा है। ये सब सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, क्यों ऐसा हो रहा है संसार में। दूसरी बात, तो सोचते हैं हर एक व्यक्ति, पर किसी को भी मालूम नहीं इस समस्या का सुझाव क्या है। Nobody has complete knowledge of what is the best thing. पर आचार्य न केवल चिंतित हैं सबके लिए, और उनको पूर्ण रूप से विश्वास है तरीका क्या है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। कन्विक्शन, कंप्लीट कन्विक्शन about the only way to relieve from all miseries. सारे समस्याओं का रामबाण दवा एक ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति भगति। यथा तरोर मूल ने, जड़ में अगर पानी डाल दो तो धड़, डाली, पत्ता, फूल, फल सब में पहुंच जाएगा। और इसी तरह सारे समस्याओं का हल क्या है? भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो, बस
एक करोड़पति बाप था, हाँ, उसका बेटा भटक के चला गया, दुनिया भर घूम रहा है, दुनिया भर घूम रहा है, पिताजी को खोज रहा है, कहाँ है? क्योंकि पिताजी ने बोला था तेरे लिए खजाना रखा हूं, अब बोल के मर गए। अरे किधर खजाना रखा? एड्रेस कभी कभी हिंदी फिल्म में होता है ना, बेटा सारा खजाना, वहां बोलो सारा खजाना। फिर पूरा फिल्म वो ढूंढते रहता है। इस तरह से पिताजी छोड़ के गए और से मालूम नहीं, खोजता है, कहीं कोई प्रदेश में जाके मर जाता। मरने के बाद लोग उसका एड्रेस पता के घर को लाते हैं। घर लाने के बाद वो खोलते, चलो एक काम करते हैं, इसको घर के आंगन में ही खोद के इसका अंतिम संस्कार करेंगे। खोदते हैं उसको अंदर डालने के लिए, तो वहां खजाना मिलता है। अरे घर में ही था पिछवाड़े में खजाना, उसको ढूंढने के लिए पूरा दुनिया ब्रह्मांड भ्रमिते। कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण, सचमुच में कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, हर एक के हृदय में, हर जीव के हृदय में भगवत प्रेम है। और हम पूरी बाहर ढूंढ रहे सुख और आनंद की खोज। हमको लगता है ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया ये मिल जाएगा फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये पोजीशन मिल जाएगा, ये प्रमोशन हो जाएगा, बस एक ही है प्रभु जी, वो हो जाए ना सब सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद जब तो करना ही है, अभी थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, ये सब हो जाने दो, उसके बाद करना ही है प्रभु जी। दोनों बैठेंगे, आप भी चलिए, हम दोनों हिमालय जाएंगे, वो दिन कभी आता ही नहीं। तो यार हमको लगता है कि बाहर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद तो बस, और वो होता ही नहीं है कभी। तो आचार्य जो है हमें याद दिलाते, पग दिखाते हैं, अरे अंदर जाओ, कर्म कांड में मत फंसो, ज्ञान कांड में, उपासना कांड, ये सब नहीं, शुद्ध भक्ति करो भगवान की हरि नाम के द्वारा। तो ये हुआ दूसरा। प्रभुपाद बैठे हुए थे कहाँ? वृंदावन में, और सोच रहे हैं पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। अब गए पाश्चात्य देश में, क्यों? क्योंकि सारे भारतवासी सब इंपोर्टेड चाहिए उनको। कहाँ का है? भारत का है, थर्ड क्लास, इंपोर्टेड ब्रश है, इसमें ना पकड़ो आप में अपने आप घुसता है वो। ये चाहिए, सब इंपोर्टेड। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं इंपोर्टेड भगत लोगों को लाऊंगा, इंपोर्टेड हरे कृष्ण महामंत्र लाऊंगा। वो अमेरिकन वाले हरे कृष्ण बोलते हैं, सफेद हाथी हम भी लेंगे। मैं बोल रहा हूं कोई नहीं सुनेगा, गोरा चमड़ी वाला आके बोलेगा यार हरे कृष्ण बोलो तुम लोग। इंपोर्टेड है यहाँ, अमेरिका में शुरू हुआ ये हरे कृष्ण आंदोलन। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं अमेरिकन इंपोर्टेड भक्तों को लाके आना चाहूंगा इनको, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। तो ये दूसरी बात, ज्ञान है पर दिखाते किस तरह से ज्ञान। और तीसरा, कुछ लोगों को चिंता है दूसरों के बारे में, ज्ञान भी है, पर उसके लिए जो समस्याएं आने वाली है, जब प्रचार करने जाएंगे तो लोग बड़े स्वागत करके रेड कारपेट डाल के आपके चरण धो के अंदर नहीं बुलाएंगे, हो सकता है पत्थर फेंकेंगे। बेचारा सटिया गया, अच्छा था ये, जब से हरे कृष्णा में गया अच्छा था, पहले खाता पीता था। हाँ, हम लोग कितना खाते थे, क्या क्या पीते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। अभी कुछ भी खाता नहीं, घास फूस खाता है बस। ये बेचारा भटक गया हरे कृष्ण में जाकर। तो अगर लेने से ही समस्या, जब से हरे कृष्ण है तब से समस्या शुरू हो जाती है। और लोग आके बोलते प्रभु जी आपने तो बोला था चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, और ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया टेढ़ी जा रही है, तो उसमें जो सीधा चलता है बोलते हैं पागल हो गया। बेचारा अच्छा था ये, पहले हमारे साथ आ रहा था, सब लोग एक साथ मिलके नरक में जा रहे थे, रॉयल हाईवे, और ये उसने एक पगडंडी बिना के पीछे जा रहा है वापस। क्या पागलपन। तो जो आचार्य शुरू करते हैं, आप सोचो उनके प्रति कितनी
कोई भी आचार्य, तुकाराम महाराज के जीवन में आप कभी सीढ़ी है, बहुत सुंदर सीढ़ी है, मूवी देखो आप तुकाराम महाराज। मैं सोच रहा था यहाँ दिखाने का उसको, अगर वो सीढ़ी है तो दिखा सकते थे। मैं देख रहा था उनके जीवन में जो जो समस्या आए, हरिदास ठाकुर के जीवन में वही आया, प्रभुपाद के जीवन में वही आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम। जो नास्तिक लोग हैं वो निंदा करते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो उनकी निंदा करते हैं, धमकी देते हैं, मार डालने का क्या बोलते हैं, थ्रेट, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेट को, धमकी देना, बंद करो नहीं तो मार डालेंगे। जैसा प्रहलाद महाराज से शुरू है, कोई नहीं है, परंपरा में आ रहा है। प्रहलाद महाराज कितने अच्छे थे, गले लगाते थे हिरण्यकशिपु, मेरा सारा धन का तू ही उसका वारिस है। बेटा क्या सीखा तू स्कूल में? हरी 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 हरी, हरी का नाम लेता मूर्ख। किसने सिखाया तुझे? प्रोफेसर शंडा, प्रोफेसर अमर का, बुलाओ टीचर को, ये सिखाया मेरे बच्चे को। और हमने नहीं सिखाया, कहां से सीखा पता नहीं है, कोई दूसरे प्रोफेसर आके सिखाए होंगे उनको, हमने नहीं सिखाया, हमने तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया। बोली फिर ये कैसे कैसे बिगड़ गया? ये तब से शुरू हो गया, क्या क्या समस्या उनको। पिता खुद एक नंबर का नास्तिक, अपने आप को भगवान मानने वाला, तब से शुरू हो गया। क्या क्या तकलीफ, और बाप अपने बेटे को इस तरह से डालना, सांपों के बीज डाल देना, जहर पिलाना, कढ़ाई में घुसा देना गरम तेल के, पहाड़ से फेंकवा देना। कोई मर्डरर भी नहीं सोचता मारने से पहले यार प्रेम से मार के छोड़ देंगे इसको, इस तरह से टॉर्चर करके मारना। रामानुजाचार्य, और एक चीज है, एक चीज आप आचार्यों के जीवन में देखिए, निडर रहते हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। हर एक आचार्यों के जीवन में उनको विश्वास रहता है, बोल कुछ भी हो। तीन चीज एक साधक के जीवन में बाधा के रूप में आती है। पहला है स्वार्थ, दूसरा है आलस्य, और तीसरा है भय। साधक भी शुरू करता है हरे कृष्ण जप करना, साधक भी शुरू करता है भक्ति, संग में आके थोड़ा असर पड़ता है, वो करता मैं भी करूंगा, और भगवान सबसे पहले उसको एक गाजर लटकाते हैं। माया, भगवान नहीं, माया देवी गाजर लटकाती है, देख हरे कृष्णा छोड़ बाद में, पहले ये सब कर ले, ये ले, एक पद भी ले ले, ये ले ले, ये ले ले, मेरे गोद में लेट जा। कोता निद्रा जायो माया पिशाचिरा को, एक अच्छा पद भी दिला के तू अभी टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, चुपचाप बैठ, अभी ज्यादा भक्ति मत कर, तेरा मठ है, तेरे बहुत सारे शिष्य हैं, खुश रहे अभी तू, और ज्यादा प्रचार उचार मत कर। तो एक है स्वार्थ, ऐसा कुछ गाजल प्रलोभन दे देना। हरिदास ठाकुर को प्रलोभन देने के लिए रामचंद्र खान बोल के एक वहां का जमींदार था। हरिदास ठाकुर एक यवन परिवार के थे, और उनका पूरे गांव स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गई। देखिए शुद्ध भक्त जो है उसके हृदय में, वो उसके वचनों में वो शक्ति होती है, स्वाभाविक रूप से आकर्षण होती है। तो रामचंद्र खान वो बड़े ब्राह्मण के कुल में था, वो उसको ईर्ष्या हो गया। हाँ, इस यवन को लोग पूजा पाठ करते, उसका गुणगान करते हैं, उसने उसको एक वेश्या भेजा उसका पतन करने के लिए, पर वेश्या ही बदल गई, एक महान वैष्णवी बन गई। जो पतन का कारण करने के लिए भेजा था वही सुधर गई। तुकाराम महाराज के जीवन में भी ऐसा, साड़ो माड़ो बोल के एक था, जलता था। ईर्ष्यालु लोग रहते हैं, उनको सहन नहीं होता है कि एक व्यक्ति को इतना गुणगान हो रहा है, उसके जो भी उसने जो भी अभंग लिखे, पूरा देहू, यही पूरा देहू गांव वही गा रहा है, तुकामणे 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 सालों मणे, और उसकी शक्ति नहीं है, तो इधर से निकालता था तुकामणे हटा के सालों मणे डालना, कॉपीराइट स्टीलिंग। हाँ? आपका घर का साबुन, आप टाटा कंपनी का साबुन का डब्बा ले लो,
उसमें अपना साबुन डाल के बेचना, एक काम। तो इस तरह से सब जगह पहला है स्वार्थ, प्रलोभन में पड़ जाते हैं साधक लोग। हम लोग शुरू करते हैं भक्ति बड़े उद्देश्य बड़े उत्साह से, पर जब कोई प्रलोभन आ जाता है तो धीरे धीरे हमारी छूट जाती है, भक्ति छूट जाती है। दूसरा आलस्य, कौन करेगा, कौन हर रोज सुबह उठेगा, कौन ऐसा। इसीलिए संग का प्रभाव बहुत जरूरी है, जैसा संग वैसा रंग। संग में आप देखिए प्रहलाद महाराज, अभी हमें कल चर्चा कर रहे थे नारद मुनि के, बोलते संग के कारण मुझे मेरा परिवर्तन हो गया। संग का बहुत बड़ा असर है। सुबह ही एक व्यक्ति ने मुझे आके बोला, प्रभु जी पहली बार पता नहीं अपने आप 3 बजे में जग गया, आज तक जिंदगी में जगा नहीं। पिछले बार हम लोग गए थे पंढरपुर, तो एक भक्त ने बोला पहली बार जिंदगी में 7 बजे से पहले 16 माला हो गया। अभी घर जाके प्रयास करूंगा। हो जाता है भक्तों के संग में, अपने आप हो जाता है। संग के बिना अकेला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, अच्छा उदाहरण नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छा है समझने के लिए। संग का असर जानना है ना, तो पियक्कड़ लोगों को देखो, जो दारू पीते हैं ना, बड़े ध्यान से देखो। जब साथ पीने वाले हमेशा साथ में पीते हैं, उनको संग का असर मालूम है। हमको नहीं मालूम, भक्तों साधकों को, पीने वालों को अच्छे तरह से मालूम। हमेशा पीते तो साथ में बैठ के पीते। क्यों? बोलते साथ में पीने से कैपेसिटी बढ़ जाता है। 2 पेग पीने वाला 8 पेग मार के फिर भी सीधा चलता है। क्यों? क्योंकि चर्चा करते रहते वो लोग, देख ऐसा पीना चाहिए, उसके बाद अगर चढ़ गया ना तो ये थोड़ा उसमें कांदा लेके उसमें डाल के खा, और थोड़ा कैपेसिटी बढ़ता है। नहीं थोड़ा चकराने के लिए ये करना चाहिए, ये थोड़ा डाल ले, थोड़ा मसाला खुरमुरा लेके बैठ, थोड़ा ये भी दे, थोड़ा ये, कैपेसिटी बढ़ जाती है। टिप्स हाउ टू इम्प्रूव इन योर कैपेसिटी। अच्छे टिप्स मिलते हैं ना, अनुभवी लोग, दादा लोग पीते हैं, वो लोग 2-2 बोतल एक साथ पीने वाले, उनके संग में बैठने से अपने आप बढ़ जाता है कैपेसिटी। इसी तरह से एक, और दूसरा क्या है, पीते हो तो लोग चर्चा करते, बड़े बड़े पियक्कड़ लोगों की, कैसे थे मेरे दादाजी, क्या पीते थे, 4-4 बॉटल एकदम ऑन द रॉक, बिना पानी डाले, और फिर भी सीधा चलते। अच्छा, सुनते सुनते टेस्ट बढ़ जाता है पीने में। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाता है। इसी तरह से भक्तों के संग में भी आए तो 2 चीज बढ़ेगा, एक क्वांटिटी बढ़ जाता है। आज तक मैं तो 4 ही करता था, पर सब भक्त कर रहे थे तो अपने आप 8 हो गया आज हमारा। और दूसरा रुचि बढ़ती है, जब देखते हैं भक्तों को अरे हरि नाम का आश्रय ले रहे तो रुचि बढ़ती है। तो दोनों है उसमें, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, संग का असर है। तो ये दूसरा आलस्य चला जाता है, क्योंकि हम संग में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो हर बार ये भी कर सकते हैं। मुझे लगता था ये सिर्फ भक्तों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए ठीक है, ये भी करता है तो गृहस्थ है, हमारे जैसा ही है। हमारे जैसे हो के भी आप इतने भी करते हो, वो भी कर लेते हैं, घर भी संभाल लेते हो, बच्चों को भी संभाल लेते हो, 16 माला भी हो जाता है, ऑफिस भी संभाल लेते हो। अच्छा, मेरे को लगता था ये सब ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए ठीक है, हरे कृष्ण 64 माला करते, आप भी करते हो। ये संग का रंग है। और तीसरा भय, कोई अगर धमकी दे दिया, कोई बोला ये क्या कर रहा है, देख तुझे बहिष्कार कर देंगे। हाँ, तुकाराम महाराज को भी बोला गया, तुझे बहिष्कार कर देंगे हम लोग, तू मंदिर आ नहीं सकता। हम लोग जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे जहां उनको आने में मना कर दिया था, बोले तो देख नहीं सकता, भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। इस तरह से ये 3 प्रकार की, एक स्वार्थ, दूसरा आलस्य, प्रलोभन, आलस्य, और तीसरा भय। और हम देखते हैं कि सारे आचार्यों के जीवन में ये रहा है हमेशा, पर उन्हें परवाह नहीं की। आज जो यहाँ हम बैठे हुए हैं,
ये जगह एक सबसे महत्वपूर्ण जगह है ये देहू का। मेरे मत से मैं कहूंगा ये सबसे, जहां भगवान ने दिखाया कि ये महान संत हैं, ये भगवान ने प्रमाण दिया कि ये संत हैं। कैसे? और यहां ये जगह है जहां तुकाराम महाराज ने दिखाया कि सचमुच में नाम ही मेरा प्राण है, नाम के बिना मैं नहीं जी सकता। मैं प्राण चला जाएगा पर नाम मुंह से नहीं। क्या हुआ, जैसे वो अभंग लिखने लगे और अभंग गाते थे, इन आचार्यों की महिमा ये है, वो जटिल वेदों के निष्कर्ष को सुंदर सुंदर अभंग के रूप में, सुंदर सुंदर भजन के रूप में सरल से पिला देते। जैसा कोई कॉन्सेंट्रेटेड चीज हो, पीना बड़ा मुश्किल है, उसको थोड़ा ऐसा मिक्स करके थोड़ा जूस बना के पिला देने में आसान है। इस तरह से जटिल वैदिक सिद्धांत को सुंदर सुंदर अभंग में, सुंदर सुंदर भजन में। आप गाथा सब गए कल गाथा मंदिर अंदर देखे, वो संपूर्ण गाथाएं महाराज तुकाराम महाराज की सारी गाथाएं उन पे लिखी हुई और उसको अलग अलग कैटेगरी में बनाया है। रीति रिवाज, केवल रिवाज को पालन करने वालों की निंदा करते हुए लिखे। हाँ, हरि नाम लेता है, बाद में वही मुंह में तंबाकू खाता है, धिक्कार है तेरे पे, ऐसे ऐसा एकदम तोड़ तोड़ के एकदम ठोक के दिए। रीति रिवाज के रूप में पालन, तथाकथित ब्राह्मणों को जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं पर उसमें कुछ भक्ति नहीं है, या नास्तिक लोगों को, या शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान की सुंदर महिमा, इतने सुंदर सुंदर अभंग है। सारे आचार्यों का योगदान ऐसी है, वो सरल भाषा में जन साधारण को किस तरह से समझ में आ जाए ऐसे समझाते हैं। स्वाभाविक रूप से जन साधारण उसको स्वीकार करती है। और जब इस तरह से उनका यश बढ़ता गया तुकाराम महाराज का, तो आसपास के गांव वाले जो अपने आप को बहुत उच्च कोटि के जन्म लेने वाले ब्राह्मण समाज के लोग समझते थे, वो लोग निंदा करने लगे। क्या है, नीच जाति का है और ये बड़ा गुरु बनने चला है, सबको हरिनाम दिलवा रहा है। बहुत पूरे गांव में फैल गया यहाँ, और कई लोग निंदा कर, पर जन साधारण लोग जो नादान लोग थे स्वाभाविक रूप से देख रहे थे। उनकी शुद्धता ऐसी थी, उनके वचनों में परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करने की इतनी शक्ति थी कि स्वाभाविक लोग अनुकरण, और इतने सुंदर से जब वो गाते थे, इतना रमण करते थे वो उसमें कि सब लोग उनको देखते ही स्वाभाविक रूप से उनको भी भगवान नाम के प्रति प्रेम, हरि नाम के प्रति प्रेम हो जाता था। तो सब लोग गाते थे और इतने सुंदर सरल अभंग थे उस समय की भाषा में, तो सब लोग गाने लगे। तो कोई भी काम कर रहा है तो वो अपने अपने गा रहा है और सुंदर से अभंग भगवान का नाम ले रहे हैं, यानी स्मरण करने में आसान करा देते हैं। आचार्यों की कृपा है। तब उन्होंने उस समाज के जो श्रेष्ठ थे राम शास्त्री, उनको बुलाया सरकार की ओर से, बोले इसको अभी बंद करो इसको। और राम शास्त्री ने दिया और बैठक हुआ, सब लोग बैठे। बोला तू क्या, कैसे, किस आधार पर तू ये प्रचार कर रहा है? तो बोले विठल ने ऐसा कहा है। बहुत सुंदर से प्रसंग है, शास्त्र के आधार पर समझाए कि कोई भी व्यक्ति ले सकता है। किरात हूणांध्र पुल्लिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खसादय ये च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कि भक्ति जो है किसी भौतिक गुण से संबंध नहीं है, किसी उपाधियों से संबंध नहीं है, केवल हृदय की बात है। ये कोई भी व्यक्ति हरि नाम ले सकता है, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, कुछ भी नहीं। शुद्ध भक्ति जो है कोई भी जीव भगवान के साथ संबंध रख सकता है। तो इस तरह से बातचीत हुआ, अंत में उनको बहुत क्रोध आ गया राम शास्त्री को। भले थे भी वो भी कर्मकांडी और दबाव भी था सब ब्राह्मणों का। तो उन्होंने कहा कि तुझे सजा मिलेगा, तूने उल्लंघन किया है वैदिक शास्त्रों का। बोले आप अधिकृत व्यक्ति हो, आप अथॉरिटी हो, भगवान के प्रतिनिधि हो, आप जो कहोगे वो सजा मेरे लिए स्वीकार है। भगवान के भक्त जो हैं हर एक स्थिति में कुछ तो एक अच्छा चीज देखते हैं। तथाकथित शाप में भी वरदान देखते हैं वो।
यही उनकी खासियत है। जीवन के हर एक प्रसंग में, बुरे से बुरे प्रसंग में कुछ अच्छा चीज देखते हैं वो, और जो भी भगवान ने दिया उसको स्वीकार करते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज हमारे आचार्य हुए, वो कहते थे कि भगवान की कृपा 3 प्रकार से आती है, सामने से, बगल से और पीछे से। हमको क्या लगता है एक ही प्रकार, जो भी अच्छा हो गया भगवान की कृपा, पर वो कहते हैं कि भगवान की कृपा 3 रूप से आती है, सामने से, बगल से और पीछे से। सामने से मतलब क्या? आप गए भगवान के सामने, नारियल चढ़ाया, फूल लगाया, अगरबत्ती लगाया और कहे कि प्रभु परसों मेरा इंटरव्यू है, अगर क्लियर हो गया तो मैं समझूंगा आप बहुत कृपाशाली हो, कृपामय हो। 400 लोग इंटरव्यू में आ रहे हैं, 4 ही पोस्ट है, अगर उसमें मुझे मिल गया, पहला नंबर मुझे मिल गया, तो मैं समझूंगा आप सचमुच में कृपा के सागर हो, कृपा सिंधु। और आप इंटरव्यू में गए, रिजल्ट आया और बोला आप सिलेक्ट हो गए। प्रभु मैं जानता हूं आप तो कृपा के सागर हो, मुझे मालूम था क्योंकि मैंने भी प्रेम से चढ़ाया था। ये कहते हैं सामने से कृपा मिलती, ये कृपा सबको अच्छा लगता है। और दूसरा कृपा है बगल से आना। बगल से आना मतलब आप अपेक्षा नहीं किए थे, आपका पेपर इतना 3rd क्लास गया परीक्षा में, 100% फेल होना है, पर पता चला कि 82% मिल गया। प्रभु मुझे मालूम है आप कृपा सिंधु हो। तीसरा, पीछे से कृपा। प्रभु मेरे दुश्मन को भी ऐसा परिस्थिति न लाना और वो परिस्थिति आपकी हो जाए, तब आप कहेंगे प्रभु ये आपकी कृपा है। कल पता चला प्रभु ये आपको कैंसर हो गया। क्या कैंसर? 16 माला करता हूं मैं 8 साल से, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये ले तुम्हारा माला, तू ही जप कर, इतना सब करने का यही फल? धिक्कार है तेरे पे। अरे दारू पिए फिर कैंसर हो जाए, दूर, ठीक है, दूसरी बात। कितना प्रेम से भक्ति करता था तेरा, इसका परिणाम यही है। भक्ति तीर्थ महाराज जी कब लिखे? जब उनको कैंसर हो गया और कुछ भी उठाने जाते थे तो हड्डी अंदर से टूट जाता था। ऐसी परिस्थिति में उनका अगर चेहरा देखोगे ऐसा मुस्कुरा रहे, अंदर से आत्मा मुस्कुरा रहे, और उस समय भी प्रवचन दे रहे थे। कुछ जाने के कुछ दिन पहले उस समय उन्होंने कहा कि मैं भगवान को ये नहीं कहूंगा कि प्रभु मुझे उस परिस्थिति, काश उसके स्तर में मैं होता, नहीं, मैं ये परिस्थिति को किसी के साथ मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप जो भी मेरे जीवन में कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए, आप जो भी मेरे जीवन में कर रहे हो मेरी भलाई के लिए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं इसमें मेरी भलाई कैसे, पर मुझे विश्वास है तुम मेरे जीवन में जो भी करोगे वो मेरी भलाई के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, मूर्ख बच्चा समझता है प्रेम नहीं है इसीलिए थप्पड़ मारती है, दूसरे को मिठाई खिलाती है, मेरे को थप्पड़ मारती है। नहीं, थप्पड़ मारने का भी उद्देश्य है। माँ किसी दूर के दूसरे के बच्चे को नहीं मारती, अपने बच्चे को थप्पड़ मारती। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम का लक्षण है। तो बुद्धिमान बच्चा सोचता है कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा इसीलिए सुधारने के लिए बोला है।